back to my channel. And after my last video, so many of you asked how I applied and about my projects, the resume and the core subjects I studied, the DSA channels I followed. So in this video I'll be covering all those doubts for you. So let's get started with how I got to know about this opportunity. So it was through a Telegram channel that I do follow, and I link them in the description box. So you don't need to explicitly search for the internship opportunities and the job opportunities, because there are already folks who are doing it for you. So, and the second thing is that it was an off-campus opportunity, which means it was not through my college. I applied through Microsoft Career Portal, and I did not apply via any referral. But if you can get a referral, so yeah, that's really great. And let's now talk about the projects that I did. So I get it that मतलब प्रोजेक्ट्स ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा होता कि क्या प्रोजेक्ट बना लें, एंड वी एंड अप मेकिंग क्लोन प्रोजेक्ट्स. बट यू शुड नॉट बी डूइंग इट, बिकॉज already there are tons of applications that a company is getting via off campus recruitment. तो एंड अगर आप क्लोन प्रोजेक्ट्स एंड नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो योर चांसेस में डिक्रीज. तो इट्स बेटर कि आप कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, एंड आई गेट इट, यूनिक प्रोजेक्ट्स नहीं समझ आते हैं. तो मुझे लगता है दैट there are some hackathons and like SIH, so they do have unique projects and the projects that are actually solving real world problems, so you can pick those projects. And yeah, so that's a good thing to do. तो हाँ, मतलब जिस भी हैकाथॉन, मतलब कोई भी हैकाथॉन हो सकती है, लाइक करेंटली वॉलमार्ट इज़ गोइंग ऑन, तो उसकी ही कोई नई थीम का प्रोजेक्ट उठा लो एंड उसको बना लो, बिकॉज ऑफकोर्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इट्स रियली ग्रेट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट SGPA थिंग. तो मुझे लगता है दैट इट्स really good if you can maintain the 8.5 plus SGPA. Okay, if you are having 7 or 7.5 plus, that's fine. Companies generally don't ask for higher SGPA, like 7 and 7.5 plus SGPA is good. But the thing is that sometimes your college may filter you out based on the basis of your SGPA, because of if they need less number of students to sit for the campus placement. तो अगर हो सकता है तो यू कैन मेंटेन 8.5 प्लस SGPA, अदरवाइज या इट्स फाइन. या बट मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था. तो एक्चुअली मेरी SGPA 8.3 प्लस 8.33 है, तो आई विश मेरी भी 8.5 प्लस होती है. एंड द थिंग वॉज दैट मुझे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में मतलब सबने ऐसे बोला हुआ था कि 8 प्लस इज़ फाइन और 7.5 प्लस इज़ फाइन, तो मैंने भी उतना ऐसे ध्यान नहीं दिया हुआ था. तो हाँ, अगर आप पहले से ध्यान रख सकते हो तो इट्स फाइन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेज्यूमे. सो आई फील लाइक दैट ऑन योर रेज्यूमे the most important thing to do is to add more and more hackathon achievements and projects. Like it's better if you can participate in more and more hackathons and get good achievements via them, like winning in hackathons or getting any rank. Because already like I get it कि समझ नहीं आ रहा होता है कि वर्क एक्सपीरियंस में क्या ऐड करें, क्योंकि हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिकॉज इफ़ वी आर अप्लाइंग फॉर एनी इंटर्नशिप. तो हाँ, हैकाथॉन हम ऐड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पार्टिसिपेट करा. एंड द अदर थिंग दैट यू कैन ऐड इज लाइक सर्टिफिकेशन, एंड इट्स बेटर एंड इफ़ यू कैन हैव सर्टिफिकेशन फ्रॉम लाइक सम कंपनीज, because I feel like, yeah, I think that Google, Microsoft, they are also having some certificate. I guess they are free, like they have some cloud certificates, AI certificates. I don't actually have idea of it that if you will include it, your resume will definitely get selected. It's not like this, but थोड़ा सेफर जोन के लिए इट्स बेटर कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करा है और आप वो ऐड कर रहे हैं, एंड अगर आपने अचीवमेंट्स अच्छी ऐड करी हुई हैं, लाइक अगर आपने सर्टिफिकेशंस अच्छे ऐड करे हुए हैं. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट मेंटेनिंग गुड CP प्रोफाइल्स. It is actually very crucial, because I've seen people getting selected to FANG because of their CP profiles. They are having good code forces, code chef profiles. So it's great if you are good at CP and you can add that to your resume. Yeah, that's it. And I'll also share my resume template in the description box. So yeah, that's it about the resume. And now let's talk about the DSA channels that I did follow.
तो TSA चैनल्स मैंने कोई एक स्पेसिफिक चैनल नहीं फॉलो करा था, एंड आई फील लाइक कि मैंने कोई भी प्लेलिस्ट ऐसे पूरा ऐसे फॉलो नहीं किया था कि मैं एक प्लेलिस्ट लाइक वी टॉक अबाउट लव बब्बर तो मैं उनकी सारी प्लेलिस्ट देखती हूँ, मतलब सारे वीडियोस देखती हूँ, या फिर स्ट्राइवर, मतलब मैंने स्ट्राइवर के कुछ वीडियोस देखे थे, लव बब्बर के भी कुछ वीडियोस देखे थे, कुणाल कुशवाहा के भी टॉपिक के अकॉर्डिंग वो वाली चीज़ थी। एंड मुझे लगता है कि आपको प्लेलिस्ट पे हैवीली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एंड DSA ट्यूटोरियल्स पे, बिकॉज आई फील लाइक कि अगर आप I feel like the better way to do is to not being heavily dependent on the playlist. Suppose आप trees की playlist देख रहे हो तो doesn't mean कि आप trees के, क्योंकि उन्होंने questions भी कराए होते हैं ना, मतलब I think जैसे अगर उन्होंने 2-3 में explanation दी है उस टॉपिक की, एंड देन उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर कराए होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को भी एज अ ट्यूटोरियल मत देखो, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखो, एंड देन जब जैसे सपोज वो कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप उसको जाके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, देन ना हो देन तब आप देख सकते हो, अदरवाइज इट्स बेटर कि अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट उनका देख ले। सजेस्ट इफ़ यू कैन सॉल्व लाइक 40 to 50 क्वेश्चन पर डेटा स्ट्रक्चर, तो ये काफ़ी अच्छा वे है सॉल्व करने का। लाइक सपोज यू हैव पिक्ड अप DP, तो आप DP के उन पैटर्न्स के लाइक जो सब क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आप उस DP के लाइक 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो एंड सिर्फ वही कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है, थोड़ा ईजी बन जाता है नए पैटर्न्स को पहचानने में एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हाँ, ये DSA का पार्ट था। एंड आई ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द अनपेड इंटर्नशिप दैट सम पीपल डू। So I'll say that don't do an unpaid internship because it's like a trap for tier 3 college students, because they also know that we are not really getting opportunities, so we'll do those unpaid internship, and it's certain, and after some time they may also ask you for the any money and courses to buy from them. So I'll say that instead of doing, even if it is an unpaid internship, so instead of doing that thing, what you can do is you can make a good project and you can work on yourself and learn some good skills, like tech stack, make some good projects by yourself. But I personally do not support the unpaid internship thing. Okay, so now I'll also talk about my interview experience. So actually before Microsoft I have also given Google interview, तो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट राउंड था उसमें मुझसे बेसिक एक ग्राफ का मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, वो लाइक मतलब रॉटन ऑरेंजेस का वेरिएशन था, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दैट वन आई वाज एबल टू डू इट। बट सेकंड क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था, उसमें कुछ इक्वेशन टाइप का था, मतलब वो क्वेश्चन इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होना था, तो वैसा क्वेश्चन था। बट इंटरव्यू में उस टाइम मेरे साथ हुआ था कि they were giving me hints but I wasn't able to catch it. I was being like that. I mean, the interviewer was giving me hints, they were guiding me through the question, लेकिन मैं उनकी बात को ऐसे इग्नोर कर दे रही थी। So that was the reason that I failed in my Google interview. Yeah, so for the interview experience I'll say that please listen to your interviewer, speak out loud, because when you are speaking out loud and if there is something that you are missing out on, so they can guide you on that. तो वो वाला सीन हो रहा होता है, बट समटाइम्स हम उनकी हिंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो ये मत करना। ये मैंने अपने गूगल इंटरव्यू में करा था, दैट वाज द रीज़न दैट आई फेल्ड इन माई गूगल इंटरव्यू। So yeah, but actually after that, like after my interview, then I realized that they were actually giving me hint and that question was kind of easy to solve. तो ये मेरा गूगल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। एंड माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है। तो वही मतलब मेरा फर्स्ट राउंड DSA का था, एंड सेकेंड राउंड में मुझसे उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, एंड कोर सब्जेक्ट्स मुझसे उन्होंने DBMS एंड ऊप्स पूछा हुआ था। एंड टॉकिंग अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स, तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गुड एट कोर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो OS, आपको OS, DBMS, ऊप्स एंड थोड़ा बहुत CN का आइडिया, मतलब मुझे लगता है कि शायद CN उतना पूछते नहीं है इंटर्न से, बट स्टिल आप मतलब CN थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट मोस्टली मतलब कम से कम आपको OS, ऊप्स एंड DBMS आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द थिंग इज़ दैट
कहाँ से पढ़े इनको, तो मैंने DBMS एक्चुअली मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम का ही पार्ट था। आई मीन वो मेरा सेम का ही एक सब्जेक्ट था, तो मैंने DBMS पढ़ा हुआ था। लेकिन जब मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू होना है, तो मैंने लव अबर का वीडियो देखा हुआ था। उन्हीं के चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आई थिंक 10 to 12 आवर्स का वो वीडियो है। मैंने एग्जैक्टली पूरा नहीं देखा था, लेकिन टाइम स्टैम्प्स में कुछ टॉपिक वाइज मैंने देखा हुआ था। एंड व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आई फील लाइक दैट ChatGPT इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। क्योंकि फिर पता करने से पहले मैंने ChatGPT को पूछा था कि लाइक DBMS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, एंड वो सारी चीज़ें अपने डाउट्स क्लियर कर रहे थे, तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड ऊप्स तो मैंने, क्योंकि ऊप्स भी मैंने सेमेस्टर एग्जाम में करा हुआ था, तो मैंने सारा रिविजन ChatGPT से करा था। एंड सम पीपल ऑल्सो आस्क मी अबाउट दैट हाउ टू कम्युनिकेट इन इंटरव्यूज़। तो हाँ, वी नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बट वो आपको इतना जज नहीं कर रहे होते हैं until or unless you are not able to solve the question that they have given you, and until or unless you are not able to answer the basic question that they have asked. Like if someone's asking you that tell me about yourself, if you are not able to answer this question, then of course they are gonna judge you. But if you're gonna fumble in between, like if you're explaining something, so it's perfectly fine. They aren't gonna judge you on basis of that. Yeah, so that's about the communication thing. And so that's it about for today's video, and if you have any doubts left, you can put in the comment section and I'll be happy to answer all of them. And yeah, thank you so much for your support for the last video. Yeah, I'm really grateful to you guys. Yeah, that's it, and bye bye. And in this moment, life feels like a dream. Living the moment, 'cause we are so free.